Dear students, our today's topic is Phylum Mollusca. The Phylum Mollusca, it is the second largest phylum in animal kingdom, which comprises of about 60,000 to 1,12,000 species. That means above 1 lakh species. Some scientists say that there are more than 1 lakh species of this phylum. Therefore, it stands for the second largest phylum in animal kingdom, and the first largest phylum is Phylum Arthropoda, which comprises of about 11 lakh to 13 lakh species. The important characteristics of this phylum are that the species or the animalcules of this phylum, they are aquatic. That means all these are aquatic, usually remain in water or sometimes in moist soil. Therefore, mostly they are aquatic and mostly they are marine. Some species are freshwater, and certain other species, we can say that they are terrestrial, which live in moist soil. Therefore, their habitat is moist soil. Therefore, we found them in all the three habitats. That means in seawater, in freshwater, and also they possess a terrestrial life. The second important character of the organisms of this phylum is that they are soft-bodied organism. इनकी body जो होती है वो नरम होती है, soft होती है. और जैसे कि हमने देखा कि phylum Arthropoda, that was segmented, but this phylum is unsegmented. I have already told you that there are only three phyla which are segmented in animal kingdom, that is Phylum Annelida, Phylum Arthropoda, and Phylum Chordata. These are the segmented phyla. Other phyla or the phyla of animal kingdom, they are unsegmented. Hence this Phylum Mollusca, it is also unsegmented. They are soft-bodied, unsegmented, triploblastic. That means they develop from the embryos having three germinal layers, that is ectoderm, mesoderm, and endoderm. And दूसरा जो चौथा character है इसका, they are bilaterally symmetrical. That means we can divide them into equal hollows from top to bottom. From top to bottom, we can divide them only by one method, that is bilateral symmetry. And their body possess a shell upon it. इनकी body पर एक calcareous shell होता है for the protection of their body. Therefore, they are the first shelled organisms जिनके ऊपर calcareous कैल्शियम कार्बोनेट का बना एक शेल होता है. तो इसमें कितने कैरेक्टर्स आ गए? एक है सॉफ्ट बॉडी, दूसरी है अनसेगमेंटेड, तीसरी है ट्रिप्लोब्लास्टिक, चौथा कैरेक्टर है बायलेटरली सिमेट्रिकल, और पांचवा कैरेक्टर है दैट मीन्स दे पोजेस ए शेल अपॉन देयर बॉडी. इन पांच कैरेक्टर्स को हमने एक ही सेंटेंस में कवर कर लिया. तो अगेन वी कैन से दे पोजेस ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. इनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है इसमें अलग अलग सिस्टम्स है, अलग अलग ऑर्गन्स है. डाइजेस्टिव सिस्टम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, और ये इन सिस्टम्स में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं. therefore we say that they possess organ system level of organization, and they have a tube within tube body plan. That means they have a complete digestive system. They have two openings, one for ingestion of food, another for ingestion of
food. And number 4 point है, that means the body of these organisms, it is divisible, it is divisible into 3 parts. It is differentiated into 3 parts. इसके 3 हिस्से हैं, एक head, दूसरा है visceral mass और visceral hump और only hump, और तीसरा जो है वो foot है. बॉडी के 3 पार्ट्स हैं, एक है हेड, दूसरा है हम्प और विसरल मॉस, और तीसरा जो है फुट है. हम्प डोर्सली है और फुट जो है दैट इज वेंट्रल पार्ट. हेड, अब हेड के ऊपर क्या है, हेड बियर्स माउथ. हेड में एक माउथ होता है, दूसरी आईज होती हैं, तीसरी टेंटेकल्स होती हैं टू कैप्चर द प्रे. तो इसमें हेड में कौन कौन सी चीज है, एक है माउथ, दूसरे है आईज, तीसरे हैं टेंटेकल्स. और विसरल मास जो है और विसरल हम्प, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ द बॉडी विच possesses the main or essential organs of the body, that is digestive system, that is this excretory system, that is the reproductive organs. तो इसमें मौजूद होते हैं, और it also contains these gonads, that is testes and ovaries. And तीसरा पार्ट जो है फुट है. Foot is the ventral part of of the body of these organisms, which is a muscular layer, which is the muscular bone. It is used for creeping. The organism creeps with the help of this foot, and it also burrows. It also makes burrows in the soil by means of this foot. That means इससे हमने समझ लिया कि इसके 3 हिस्से हैं. एक है head, the head contains mouth, head contains eyes, head contains tentacles. तो head में जो है इसमें buccal cavity है. Buccal cavity contains a rasping tongue. इसमें एक खुरदुरी टंग होती है. तो इसके इस हेड पार्ट में आईज भी हैं और हेड पार्ट में ही टेंटेकल्स है. अब दूसरा पार्ट जो है वो है विसरल मॉस और विसरल हम्प, दैट इज द डॉर्सल पार्ट ऑफ दिस एनिमल. तो इस डॉर्सल पार्ट में क्या है, इट कंटेन इस हम्प, इट कंटेन्स द एसेंशियल बॉडी ऑर्गन्स. और तीसरा जो है foot, it is the ventral part which is muscular. It is used for creeping and burrowing in the soil. So body is covered externally by means of a shell. बॉडी के ऊपर एक shell के लिए shell है. This shell is secreted by mantle. Shell mantle से secrete होता है. अब question है, what is mantle? Mantle को below the shell lies a mantle. This mantle lies below the shell. It is a soft glandular fold of body wall. ये इसकी body wall का एक ग्लैंडुलर हिस्सा है, फोल्ड है, जिससे ये मेंटल सिक्रीट होता है. ये इसके विसरल मास के ऊपर होता है. और विसरल मास के ऊपर मेंटल होता है. मेंटल और विसरल मास के दरमियान एक कैविटी होती है, जिससे हम जैसे मेंटल कैविटी के नाम से भी पुकारते हैं. तो छठा पॉइंट जो है, that means we say, I have already told you that these animals, they possess a tube within tube body plan. That means they have a cilium, and in cilium we see digestive tract. इनके cilium में digestive tract है, and digestive tract is therefore complete. It contains an opening, that is mouth, for ingestion of food, and anus for the ejection of food. Therefore digestive system is complete. और digestive system में पहला part जो है वो buccal cavity है. buccal cavity में एक rasping tongue होती है. और इसमें एक और चीज है, अभी तक एक नई चीज इसमें है, advancement है इसमें, that it consists of digestive glands. That means इनके mouth में, इनके buccal cavity में, इनके pharynx में salivary glands हैं which secrete saliva, और it
they also contain hepatopancreatic gland. That means इनके पास pancreatic gland भी है और इनके पास liver भी है. तो इन दोनों के जरिए से जो डक्ट्स निकलते हैं वो ज्वाइन होते हैं. जब वो एक ही डक्ट बनाते हैं तो हम उनको कहते हैं hepatopancreatic duct. The duct formed by the joining of the ducts of pancreas and the ducts of liver form a common duct which is known as hepatopancreatic duct. तो ये hepatopancreatic duct इनमें मौजूद होती है. Therefore we can say the digestive system of molluscs consists of is complete, and it consists of digestive glands like salivary gland and hepatopancreatic gland. तो रेस्पिरेशन इनमें होती है बाय मीन्स ऑफ गिल्स. इनमें गिल रेस्पिरेशन होती है या जिसको हम कहते हैं ब्रैकियल रेस्पिरेशन. लेकिन इनकी रेस्पिरेशन को हम कहते हैं इनकी गिल्स जो हैं उनको टेनिडिया कहते हैं. TECTENIDIA टेनिडिया. Therefore they respire by means of gills which are called टेनिडिया. इनके गिल्स को टेनिडिया कहते हैं. तो इसके साथ में मैंने लिखा है, इसके साथ में एक और पॉइंट है, वो है सर्कुलेटरी सिस्टम. Circulate, that means blood vascular system. Blood vascular system is of open type. Is of open type with heart and blood vessels. That means जब blood एक ही तरह से इसकी मूवमेंट होती है तब हम कहते हैं कि इसको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं. जब प्योर ब्लड और इम्प्योर ब्लड अलग अलग चैम्बर्स में होती हैं या अलग अलग चैम्बर्स में ब्लड अलग चैम्बर से ब्लड जमा भी होता है और दूसरे चैम्बर से ब्लड डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमको कहते हैं क्लोज टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम. तो इसमें एक ही साइड से ब्लड चलता है. Therefore it consists of open circulatory system which consists of heart, blood vessels and sinuses. जो इनकी जो सीलूम जो भी है वो सीलूम भी इनमें रिड्यूस्ड टाइप ऑफ सीलूम होती है. तो इनका ब्लड जो है वो रेड नहीं होता है. इट कंटेन्स अ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट. दैट पिगमेंट इज कॉल्ड हेमोसायनिन. HAEMO हेमो CYANINE हेमोसायनिन. तो इनमें एक्सक्रीशन जो है, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ मेटानेफ्रिक किडनीज. इनमें किडनीज होती हैं. तो in some species which nephridia which are not yet completely, they have not completely formed the kidneys. Therefore उनमें जो excretion of waste products होती है that takes place through tubules. These tubules are called nephridia. But certain other mostly species they have metanephric kidneys which possess these nephrons for the for the removal of waste products from their body fluids. तो इसमें सर्कुलेटरी सिस्टम और ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो है, दैट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अमोनिया एंड सम स्पीशीज कंटेन यूरिक एसिड. नर्वस सिस्टम जो इनका है, ये नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 pairs of ganglion. Ganglion means group of nerves like brain. तो इनमें कहते हैं which are these groups of ganglion or 3 to 4 which are present in cerebral. इनका नाम दिया है cerebral ganglion, pedal ganglion, visceral ganglion and pleural ganglion. These ganglion, these groups of nerves, they are connected by means of commissures and connectives. इनके साथ ये जोड़ होता है इनका, ताकि इनमें जो सिग्नल चल जाती है वो एकदम एक तरफ से दूसरी तरफ चली जाती है. तो these ganglion, they are connected to one another by means of connectives and commissures. In these organisms, the sexes are mostly separate. That means dioecious
though some species have both the sexes, hence they are called hermaphrodite. तो मोस्टली स्पीशीज है जिनमें सेक्सेस सेपरेट हैं, डायोइशियस हैं या यूनिसेक्सुअल है, एक में एक ही सेक्स है। तो मगर कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिनमें एक ही ऑर्गेनिज्म में दोनों सेक्स हैं, जिनको हम हर्माफ्रोडाइट या मोनोइशियस के नाम से भी पुकारते हैं। तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन है दैट मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल। Fertilization of eggs takes place either inside the body or outside the body. Therefore, some species are oviparous and some other species are ovoviviparous, in which the fertilization of this egg takes place inside the body, or they give birth to young ones. तो इसमें एक और पॉइंट जो है, लास्ट पॉइंट, डेवलपमेंट जो इनमें है, दैट डेवलपमेंट इज indirect or direct. In some species the zygote directly develops into adult. Zygote forms the embryo directly develops into the adult. And certain other species are there which are mostly aquatic species. In them the development is indirect through the formation of larvae, and in these three types of larvae are formed. Number one is ट्रोकोफोर लार्वी, एज इन सीपिया। सीपिया में ट्रोकोफोर लार्वा, इसमें जो लार्वा बन जाता है उसका नाम है ट्रोकोफोर लार्वा। ये या सीपिया में, या इसका नाम है, आम नाम जो है, आम तरह से जो पुकारते हैं इसको कैटल फिश के नाम से पुकारते हैं। और दूसरा लार्वा जो है दैट इज विलिजर लार्वा, VELIGER, विलिजर लार्वा, एज इन पिल्ला। पिल्ला में ये लार्वा बन जाता है। पिल्ला का आम नाम जो है ये है एप्पल स्नेल। और तीसरा किस्म का लार्वा है दैट इज ग्लोचिडियम लार्वा। ग्लोचिडियम, GLOCHIDIUM, ग्लोचिडियम लार्वा, एज इन यूनियो। जैसे यूनियो में ये लार्वा पाया जाता है, तो यूनियो का आम नाम जो है दैट इज फ्रेश वाटर मसल। इसका आम तरीके का जिसे हम पुकारते हैं उसका नाम है फ्रेश वाटर मसल। इस तरह से हमने इस फाइलम के कैरेक्टर्स पढ़ लिए। मुझे उम्मीद है आप इनको अच्छी तरह से पढ़ोगे, अपने आप को दिमाग में इनको जहन नशीन करोगे। इनके बाद आप इनको याद करके खुद इनको लिख सकते हैं। आप इसको नोट को अपनी कॉपी पर दर्ज किया करें, और ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। इसमें मोस्टली ये कैरेक्टर जो है इनको हमने एक ही बहुत सारे कैरेक्टर्स में एक ही कैरेक्टर में जमा किया, क्योंकि इसके दूसरे अनदर कैरेक्टर्स हैं, इसलिए इनको जमा करके लिखा जाता है। इसमें ये नहीं ऑफ करना कि दे आर सॉफ्ट बॉडी अनसेगमेंटेड, कोई लिखेगा दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक, कोई लिखेगा दे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल, दे आर शैलेड एनिमल। तो अलग अलग कैरेक्टर्स बनाएगा तो ऐसे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ये इन मार्क्स को इनको कैरेक्टर्स को आप जमा करके एक ही कैरेक्टर बनाएं, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर्स इसमें लिख सकते हो, जिनसे आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे मार्क्स हासिल करोगे। बाकी ये बहुत आसान फाइलम है, लेकिन एक फाइलम और दूसरे फाइलम के दरमियान थोड़ी बहुत जो फर्क होती है, डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स होती हैं, वो आप रोजाना देख सकते हैं। तो उसमें जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमने फाइलम आर्थ्रोपोडा में पढ़ा था दैट दे आर सेगमेंटेड, लेकिन इसमें हमने पढ़ा दे आर अनसेगमेंटेड। फाइलम आर्थ्रोपोडा में हमने कहीं पर डाइजेस्टिव ग्लैंड्स का नाम नहीं लिया, लेकिन यहाँ पर हमने बताया कि इनमें सैलिवरी ग्लैंड्स भी हैं, पैनक्रियाटिक ग्लैंड्स भी हैं। तो वहां पर हमने देखा कि दे possess well developed mouth parts like having labium
फाइलम लैबरम एटसेट्रा, तो उनमें होते हैं फॉर पियर्सिंग, फॉर कैचिंग द प्रे, तो उनमें जो माउथ पॉट्स हैं दे आर हाईली डेवलप्ड माउथ पॉट्स उनमें है फाइलम आर्थ्रोपोडा के स्पीशीज में। लेकिन इनमें हमने क्या देखा, हियर दिस द फायरेकस और द बकल कैविटी ऑफ दिस स्पीशीज इट पोजेसेस अ रास्पिंग टंग, लेकिन इसमें हमने ग्लैंड्स भी देखे, उसमें हमने ये ग्लैंड्स नहीं देखे। तो उसमें मुख्तलिफ किस्म की रेस्पिरेशन होती है, गिल रेस्पिरेशन भी होती है, बुक लंग रेस्पिरेशन भी होती है, लेकिन इसमें हमने जो रेस्पिरेशन देखी वो हमने गिल रेस्पिरेशन ही देखी, विच टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ टेनिडिया। तो ये कुछ कैरेक्टर्स ऑफ उसको और इसको आपस में मुवाजना करके आप देख सकते हो कि इन दो में कितनी डिफरेंसेस हैं। जिन डिफरेंसेस की बुनियाद पर इनके अलग अलग फाइलम बनाए गए हैं। ये यूं ही काम नहीं है, लेकिन इनके कैरेक्टर्स डिस्टिंग्विशिंग फीचर जो है उनको देखकर इनको अलग अलग फाइलम में जमा किया गया है। इसलिए आप इनको अच्छी तरह से आपको पढ़ना है, ताकि आप देखेंगे आपको समझने में, याद करने में आसाइश हो जाएगी। यहाँ पर एक और कैरेक्टर्स है, दे हैव ए कैरेक्टर फॉर क्रीपिंग एंड ब्रायोइंग। इनमें क्रीपिंग कैरेक्टर भी है, बरोइंग का कैरेक्टर भी है, लेकिन ऐसा कैरेक्टर हमने वहां पर फाइलम आर्थ्रोपोडा में नहीं देखा। तो यहाँ पर हमने एक और कैरेक्टर देखा कि इनके ऊपर एक कैल्केरियस शल होता है, तो उसमें उनमें हमने शल ऐसे शल, देयर बॉडी पोजेसेस द क्यूटिकल बट दे डू नॉट हैव ए शल। तो उनमें हमने देखा एक और कैरेक्टर कि उनमें दे आर लेग्ड एनिमल्स, जॉइंटेड अपेंडेजेस उनके हैं, लेकिन इनमें वहां पर हमने फुट देखा, कहीं पर जॉइंटेड अपेंडेज वगैरह नहीं देखी। तो उनमें हमने देखी फाइलम आर्थ्रोपोडा में वहां पर विंग्स होती है, लेकिन यहाँ पर हमने कोई विंग वगैरह नहीं देखी। इसलिए हम इन कैरेक्टर्स को डिफ्रेंशिएट करके हम इनको अच्छी तरह से समझ सकेंगे, ताकि हमें पूरा इल्म हासिल हो जाए, वाकफियत हासिल हो जाएगी कि एक फाइलम दूसरे फाइलम से कैसे डिफर करता है, कैसे मुख्तलिफ है, जिसकी बुनियाद पर, जिन डिफरेंसेस की बुनियाद पर इनको अलग अलग फाइलम में बांटा गया है। जैसे कि आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा कि दे आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर सिमिलरिटीज एंड डिससिमिलरिटीज। उनकी यकसानियत और गैर यकसानियत की बुनियाद पर इनको अलग-अलग फाइलम में, क्लास में, जनरा में, स्पीशीज में बांटा गया है। तो यही वजह है कि हम इन कैरेक्टर्स को इसीलिए पढ़ते हैं, ताकि हमें ज़हन नशीन हो जाए कि एक फाइलम दूसरे फाइलम से कैसे डिफर करता है। मुझे उम्मीद है आप इसको अच्छी तरह से पढ़ोगे, याद करोगे, समझोगे, और फिर याद करके अपनी कॉपी पर, अपनी नोटबुक पर इसको दर्ज करो, ताकि एग्जाम में आपको आसाइश हो जाए। बाकी बस।